खुदा यीशु मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस मोतबर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। Praise God, hallelujah. मुहैया करता है Yes, Lord. यहोवा यारी तू मुहैया करता है यहोवा यारी तू मुहैया Praise करता God. है यहोवा यारी तू मुहैया करता 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 है Praise Lord, hallelujah. यहोवा यारी तू मुहैया करता है Lord Jesus. यहोवा यारी Hallelujah. मुहैया करता है यहोवा यारी तू 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 आइए खुदावंद के नाम को जलाल दें। मोराया पे आकर मज़बा तैयार करे जो पहाड़ मोराया पे आकर मज़बा तैयार करे उसके ईमान को देख के फिर तू उससे प्यार करे उसके ईमान को देख के फिर तू उससे प्यार करे कुर्बानी का बड़ा दिखाता है कुर्बानी का बड़ा दिखाता मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने आप लाइव मेरे साथ आ गए हैं, अगर आप अपना नाम और अपना मुकाम, किस जगह से आप हैं, किस सिटी से आप हैं, हम सबों के लिए बरकत का सबब होगा अगर आप लिखते जाएं। Yes, Lord, hallelujah. Praise Lord, hallelujah. खुदा की सताइश हो। आप सबों को एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, और ये बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। Glory Jesus. जो भी तेरे हुक्मों को माने वही करे जो तू चाहे टोकरियां तू भरता उसकी बरकत उसको कहे Praise Lord. हमारे पास चंद सेकंड है और हम खुदा के कलाम की जानिब आने वाले हैं। आइए तैयार करें अपने आप को और इसको शेयर करना शुरू करें। उसको तुम नहीं Praise Lord. बनाता है उसको दुम नहीं, वो सर बनाता है। उसको तुम नहीं आइए सर बनने के लिए खुदावंद के नाम को जलाल दे, ऑनर दे, उसकी बुजुर्गी करे, उसकी सताइश करे, उसकी महिमा गाए उसकी। मुहैया करता है यहोवा यारी तू मुहैया करता है यहोवा यारी तू मुहैया करता है यहोवा यारी तू मुहैया करता है यहोवा Praise Lord, hallelujah. यहोवा यरी मुहैया करता है। आप इस पेज को शेयर करना शुरू करें। इस वक्त हम YouTube पर भी लाइव हैं
اور YouTube پر بھی آپ ہمارے اس میٹنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہماری میڈیا کی ٹیم اس وقت اس پہ بھی کام کر رہی ہے آفس میں. تو آپ شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے خداوند آپ کے وسیلہ سے بڑے کام کر رہے ہیں اور میڈیا ٹیم کو استعمال کر رہے ہیں. Praise God. تیری مرضی پوری کرے وہ جھک جھک سجدے کرے. Praise God. تیری مرضی پوری کرے وہ جھک جھک سجدے کرے. تیری Praise شبیہ Jesus. Hallelujah. دلتا جاتا ہے. Praise Lord. تیری شبیہ دلتا جاتا ہے. یہوہ یریب مہیا کرتا ہے. یہوہ یریب مہیا کرتا ہے. یہوہ Yes, Lord. یریب مہیا کرتا ہے. یہوہ یریب مہیا کرتا ہے. یہوہ یریب مہیا کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے القادر جلالی خوبصورت معتبر اور نہایت ہی خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. میں خداوند کا خادم پادری جمیل ناصر آپ سبوں کو اس لائیو شو کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی ہیں, کسی ملک کے اندر ہیں, کسی بڑے اعظم کے اندر ہیں, کسی شہر کے اندر ہیں, گاؤں کے اندر ہیں, قصبے کے اندر ہیں, آپ یوٹیوب پر اسے دیکھ رہے ہیں, فیس بک پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, یوٹیوب پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میں خداوند یسوع مسیح کے القادر جلالی مقدس نام میں آپ کو نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ آپ کو بلیس کرتا ہوں, برکت دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں کہ آج کا یہ سیشن ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. آج ہم مکاشفہ اور دانیل کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے, لیکن آج ہم دانیل کی کتاب کے پہلے چیپٹر کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں. دانیل کی کتاب دا بک آف ڈینیل چیپٹر 1 اس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں. تفصیلی اور تفسیری ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ آئندہ زمانے کے اندر خدا کیا کرنے والا ہے. خدا نے ماضی کے اندر کیا کیا قوموں, قبیلوں, امتوں کے ساتھ. خدا حال کے اندر دنیا کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور مستقبل میں خدا کیا کرنے جا رہا ہے, کیونکہ ان تینوں زمانوں کی خبر بائبل مقدس دیتی ہے. دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو تینوں زمانوں کی خبر دیتی ہے. ماضی کی خبر دیتی ہے, حال کی خبر دیتی ہے اور مستقبل کی خبر دیتی ہے. اور اس کتاب کو کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اس کی تفسیر کرے. اس کی تفسیر, اس کی ڈیٹیل, اس کی انٹرپریٹیشن, اس کی ڈیٹیل اسی کتاب کے اندر موجود ہے, کیونکہ خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کے ذریعے سے کلام کیا, اور یہ نبیوں کا معتبر کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر منوعن ہے. اور تاریخ کے اندر اس کتاب نے انمٹ ناقوش چھوڑے ہیں, اور یہ انمٹ ناقوش جو ہیں, جو نہ ختم ہونے والی تاریخ کی تمام باتیں جو آج ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے اندر لکھی ہے, جو آج انسائکلوپیڈیا آف بریٹینکا کے اندر لکھی ہے, یا دنیا کی تواریخ کی بڑی بڑی کتب کے اندر جو ڈیٹیلڈ تاریخ لکھی ہے, وہ ساری کی ساری یہ ہے اس کا ماخذ, یہ ہے اس کا مخرج, یہ ہے اس کا سورس. تو میں یوں کہوں گا ہسٹری کا سورس بھی اگر ہے تو وہ بائبل مقدس ہے. اور آج میں تواریخ کے چند اوراق پر سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں, اور میں تواریخ کے ان اوراق پر سے آپ کے لیے پردہ اٹھاؤں گا اور ان تاریک جھروکوں کے اندر میں آپ کو لے کر جاؤں گا
जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, लेकिन हम तक पहुंचाए शायद ना गए हो, शायद हमारे टाइम की कमी की वजह से, शायद कोई और वजह हो, किसी भी वजह से अगर वो चीजें हम तक नहीं पहुंची, तो आज मैं खुदा का खादिम होते हुए आपके साथ उन चीजों को शेयर करने जा रहा हूं। सो आइए दानियल की किताब का मुतालिया करें। आज का जो मुतालिया है दानियल की किताब में से है, और मैं आपको बताता चलूं, नबूकदनजर से सद्दाम हुसैन तक ये किताब मेरी मौजूद है, और ये मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो आप इसे हमारे ऑफिस से, पाकिस्तान के ऑफिस से मंगवा लें। अभी मैं दाऊद से कहूंगा कि यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक पे ऊपर भी ये ऑफिस का नंबर दे दे आप, ताकि जहां से ये किताब मंगवाई जा सके। ये बड़ी खूबसूरत किताब है, और आज की टीचिंग जो दी जा रही है इस किताब के अंदर से बहुत सी बातें मौजूद हैं, पहले से मैंने लिखी हुई हैं, तो आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। ये तारीख के उन औराक पर मबनी है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर से है। सो आइए किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं। आज की दानियल की किताब, दानियल की किताब का पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3 साल में शाह बाबुल नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया, और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना में दाखिल किया, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पिंजर को हुक्म किया कि बनी इसराइल में और बादशाह की नस्ल में से शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। बाइबल मुकद्दस का ये जो हिस्सा मैंने आज आपके सामने पढ़ा, कल का जो सेशन गुजरा था जिसमें हमने सीखा कि हिजकिया बादशाह जिसने एक दुआ की थी और यसाया नबी ने आके उसको मैसेज दिया था, और वो मैसेज ये था कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तू बचने का नहीं और तू मर जाएगा। 3 दिनों के अंदर अंदर तेरी वफात हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और हिजकिया बादशाह ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दीवार की तरफ मुंह किया और जार जार रोया और कहा मैं मरना नहीं चाहता। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यसाया नबी अभी शहर से बाहर भी नहीं निकला था कि खुदा का कलाम दोबारा यसाया नबी पर नाजिल हुआ, और खुदा ने यसाया नबी से कहा कि जाके हिजकिया से कह कि मैंने तुझे तेरी 15 साल उम्र और बढ़ा दी है, मैंने तेरे आंसू देखे, तेरी मिन्नतें देखी, लिहाजा मैंने तेरी 15 साल उम्र और बढ़ा दी है। और यसाया नबी वापस गए, और वापस जाकर हिजकिया बादशाह के महल के अंदर दाखिल होते हैं, और जाकर उनको पैगाम देते हैं कि खुदा ने कहा कि अब तू नहीं मरेगा, बल्कि तेरी उम्र 15 साल और बढ़ गई है। तो ये कहानी का इख्तिताम यहां नहीं होता, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा जाए हिजकिया बादशाह की उम्र 15 साल और बढ़ी। तो उस दौरानिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इस्राइल की, वो नहायत नाजुक सिचुएशन थी, और उस नाजुक सिचुएशन के अंदर जो बाबुल था वो उभरती हुई सल्तनत बन रही थी, या मैं यूं कहूंगा कि जो सामरियों या सुमेरी कौन थी वो पर तोड़ रही थी कि किसी तरीके से अपनी खोई हुई सल्तनत को वापस लिया जाए और फिर पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की जाए, जिस तरह उनका बाप जिसका नाम हुम्मुराबी या बाइबल मुकद्दस में जिसको अमराफिल कहा गया है वो किया करता था। दूसरी जानिब हम देखते हैं अशूरी हुकूमत जो है वो भी अपने नुक्ते अरूज पर थी, और अशूरियों ने, जिसे बाइबल मुकद्दस में असूरी कहा गया है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था, और उसकी छाप जो थी वो उस वक्त
जो थी वो यरूशलेम के ऊपर भी थी और यरूशलेम भी उन्हीं के मती हो चुके थे। अब सारी दुनिया अशूरी हुकूमत के कब्जे के अंदर थी और अशूरियों की जो हुकूमत थी, जो नैनवा जिनका हेडक्वार्टर था, नैनवा के अंदर जिसको बैठ के वो ऑपरेट किया करते थे, जो मौजूदा दौर के अंदर भी आप देख सकते हैं नैनवा की कहानी बाइबल मुकद्दस के अंदर भी आपको मिलेगी, ये वहां उसका हेडक्वार्टर था और अशूर बनी पॉल इनके आखिरी बादशाहों में गुजरे हैं। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये वो जमाना था और उस जमाने के अंदर ये जो हिजकिया बादशाह था, हिजकिया बादशाह ने बुला लिया शाह बाबुल को। शाह बाबुल, बाइबल के अंदर लफ्ज शाह बाबुल आया है, लेकिन वो बाबुल का बादशाह था जरूर, लेकिन वो भी सुपरवीन के अंदर था या मुती था या बाज़गुज़ीन था या खिराज देने वाला था, लगान देने वाला बादशाह था और वो अशूरियों को लगान दिया करते थे जो बाबली थे। तो जब ये यरूशलेम के अंदर आए, इराक के लोग, बाबल के लोग, तो आकर इन्होंने वहां पर कहा कि हम मिलकर काम करते हैं, हमारी हुकूमत मिल जाती है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ये दोनों हुकूमतें आपस के अंदर इत्तेहाद करना चाहती थी, यरूशलेम की हुकूमत और बाबल की हुकूमत, और वो दोनों इत्तेहादी बन के अशूरियों को मारना चाहते थे। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा का कलाम नाज़िल हुआ और खुदा ने यसाया नबी से कहा कि इस बंदे ने, हिजकिय्याह ने गलत काम किया है, लिहाजा तू क्या कर, इसको कह तेरी ये यरूशलेम की जो चीजें हैं, जो ज़रूफ है, जो बर्तन है, तेरी आंखों के सामने उठा के लोग ले जाएंगे और तेरी नस्ल इसे के लोगों को ख्वाजा सरा बनाया जाएगा और तेरी नस्ल के लोग जो है वो देखेंगे हुआ क्या है और ये तेरे घर के अंदर से ही होगा। और ये सब कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये होने वाला था। अब जब होने वाला था तो यहां शाह यहूदा यहोयाकीम का जिक्र आता है। अब जब शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत आई है ना, जरा गौर कीजिएगा, अगर आप इस हिस्टोरिकल फैक्ट्स को समझना चाहते हैं, मुझे पता है कि चर्चिस के अंदर शायद तवारीख के इन औराक पर से आपकी तवज्जो ना लाई जा सके और हो सकता है सेमिनरीज के अंदर भी, बहुत सी सेमिनरीज, बहुत से कॉलेजेस के अंदर तवारीख की कुतब का मुतालिया ना करवाया जा सकता हो, लेकिन आज ये अच्छा चांस है आपके लिए कि आप आराम से बैठिए, कॉपी पेंसिल पकड़िए, रिकॉर्ड कीजिए, जैसे भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये आपकी जिंदगी के लिए और आपके खानदान के लिए बहुत आसान करके मैं पेश करने लगा हूं, समझिएगा। अब 80 साल गुजर चुके हैं इस वाकया को, हिजकिय्याह की दुआ को तकरीबन 80 साल गुजर चुके हैं और 80 सालों के बाद फिर क्या हुआ, एक और बड़ा वाकया हुआ। तकरीबन 80 साल गुजर चुके हैं या इससे भी थोड़ा कम या ज्यादा, इसे में कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उसी सदी की बात है, एक सदी की बात है। तो अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब शाह यहूदा यहोयाकीम आया, हिजकिय्याह बादशाह के बाद काफी अरसा के बाद चंद और बादशाह इसमें गुजरे और उसके बाद शाह यहूदा यहोयाकीम बादशाह हुआ। ये वो जमाना था जब सुनार की हुकूमत जो थी, जिसका कल मैं जिक्र कर चुका हूं पहले लेक्चर के अंदर, जिसके ऊपर नमरूद हुकूमत किया करता था, सुनार की हुकूमत, या मैं यूं कहूंगा बाबलियों की जो हुकूमत थी, ये छोटी हुकूमत थी और ये हुकूमत जो थी अशूरियों के ज़ेरे साया थी। अब मेरे साथ रहिएगा, अब अशूरियों का जुआ जो था बाबलियों ने अपने ऊपर से उतार दिया। अशूरियों की हुकूमत, अशूर बनीपाल शमश शमोकन के बाद ये हुकूमतें खत्म हो जाती है। शमश शमोकन जो था बाबुल के अंदर था और अशूर बनीपाल जो था वो आया और आके उसने इस हुकूमत का खात्मा किया, बाबली हुकूमत का, और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा उसने बाबल को जला दिया और उसके बाद निबूपलाजर बादशाह बना इराक का, सुनार का। हुमुराबी के बाद 1300 साल के बाद उसे सल्तनत मिलती है। जब ये सल्तनत वो ले लेता है तो अगला स्टेप जो आता है, दूसरी जानिब अब एक और बड़ी हुकूमत जो थी वो पावरफुल और जोरावर हो चुकी थी। गो वो पहले से ही जोरावर थी, लेकिन अब उसका जोर और ज्यादा बढ़ गया था और वो थी मिस्र की हुकूमत। अब मेरे साथ रहिए, बाबुल की हुकूमत ने अशूरियों को शिकस्त देकर
अपनी हुकूमत को कायम कर लिया। दूसरी जानिब जो है मिस्र की हुकूमत जो है वो पावरफुल हो चुकी है, और मिस्र की हुकूमत ने अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू किया और इसराइलियों के ऊपर भी अपनी छाप डाली। अब इसराइल भी जो था वो भी बाज़गुज़ीन हो गया, या मैं यूं कहूंगा कि इसराइल भी मती हो गया। इसराइल के ऊपर भी कब्जा जो था बुनियादी तौर पर तो मैं यूं कहूंगा मिस्र का ही था, असर तो मिस्र का था, लेकिन हुकूमत जो थी वो सारी की सारे इसराइलियों के पास थी। अब तीन चीजें हैं, एक तरफ मिस्र है, दूसरी तरफ इराक है, तीसरी तरफ यरूशलेम है। अब ये तीनों के तीनों हुकूमतें पर तोड़ रही हैं कि किसी तरीके से हम सुपर पावर बन जाए, हमारे पास इक़्तिदार आए। मिस्री कह रहे हैं हमने इसराइलियों को पहले भी अपने पांव की जूती बना के रखा था, और इसराइली कह रहे हैं कि हमें खुदा ने सरफराजी दी थी और हमने मिस्रियों को मारा था, और बाबली कह रहे हैं हमारी पहली हुकूमत थी। तो ये सुपर पावर बनने के चक्रों के अंदर है उस जमाना के अंदर। और उसी जमाना के अंदर ये बाबल जो था, या मैं इराक की बात कर रहा हूं, इराक एक ऐसा शहर है जिसके अंदर से दरियाए फरात निकलता है, और कदीम बाबल जो है उसके सेंटर से फरात की नहर गुजरती थी जो कि मुल्क को दो हिस्सों के अंदर बांट देती थी। अब उस फरात के किनारे किनारे चलते 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 एक और इलाका आता है, और बाइबल मुकद्दस में इसका इलाके का नाम किरकमस है। ये किरकमस एक ऐसी जगह है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री का मुताला करें, अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मुताला करें, अगर आप वर्ल्ड बुक का मुताला करें, और अगर आप बाकी तवारीख की किताबों का मुताला करें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कुतब तवारीख पर छपी हुई हैं जो बहुत से इदारों ने जो सेकुलर हिस्ट्री है छापी है, उसके अंदर आपको इसका जिक्र मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि यह जिक्र आपको वहां पर मिले, इसका जिक्र बाइबल के अंदर मौजूद है। किरकमस एक ऐसी जगह है जिस जगह के ऊपर हित्तियों की हुकूमत थी। यह छोटा सा इलाका था, हित्ती बादशाह यहां पर थे, और बाबली जब वहां से चलते हैं तो चलते 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 आगे हित्तियों को मारने की कोशिश करते हैं, दूसरी जानब से मिस्री आते हैं ताकि उसको मार सके। अब यह था कि इसराइलियों की नजर भी इसी हुकूमत के ऊपर थी, बाबलियों की नजर भी इसी हुकूमत के ऊपर थी, और दूसरी जानब से मिस्रियों की नजर भी इसी हुकूमत के ऊपर थी। आइए बाइबल का मुतालिया मेरे साथ करते हैं। दूसरी तवारीख, इस बात को समझने के लिए दूसरी तवारीख और उसका बाब नंबर 35वां और उसकी 20वीं आयत, 35वां बाब और उसकी 20वीं आयत से आगाज करते हैं कि यह हकीकत के अंदर तारीख हमें लेकर कहां जा रही है, क्या होने वाला है, क्योंकि यह एक बड़ी जंग होने वाली है यहां पर। क्योंकि मैंने आपको बताया ये जंग किस लिए होने वाली है कि तीनों ममालिक जो है, ये किरकमस जो है, जो हित्तियों की सल्तनत है, इस पर नजर रखे हैं, क्योंकि ये मिलिट्री का भी हेडक्वार्टर है और बिजनेस का हब है, क्योंकि ये पानी के जरिए से उस वक्त तजारती काम वहां से होते, तो बिजनेस के लिए ये जगह बड़ी सूटेबल थी। और तीनों जो थी सुपर पावर जो अपने आप को कहती थी, ये पावर जो थी ये चाहती थी हम इसे कब्जा के अंदर कर ले। अब किताब मुकद्दस का फरमान है, हुआ क्या? बाइबल मुकद्दस में दूसरी तवारीख और उसका जो 35वां बाब और उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 35 और इसकी आयत नंबर जो है वो है 20। यहां पर यूं लिखा है, इस सब के बाद जब योशिया हैकल को तैयार कर चुका तो शाह मिस्र निकवाह ने किरकमस से जो फरात के किनारे है लड़ने के लिए चढ़ाई की और योशिया उसका मुकाबले को निकला। सो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब उसने हमला करना था इस खित्ते के अंदर, फिराउन निकलो इसे कहा गया, निकोह कहा गया है। सो फिराउन निकोह जो है, इसने हमला करना था हित्तियों के ऊपर। तो ये हमला करने के लिए चलता है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो यहूयाकीम था, जिसका जिक्र दानियल की किताब के पहले बाब की पहली आयत के पहले फिक्रे के अंदर है, इसका बाप जो था यूसिया, इसने क्या किया? इसने इंटरफेरेंस की। इसने कहा गुजर के तो तुमने यहां से जाना है, रास्ता रोक लिया।
और इसने रास्ता रोकेगा, पहले मेरे साथ जंग कर। फिरौन को कहता है, ये बादशाह शाह यहूदा का बादशाह, इस्राइल का बादशाह योशिया कहता है कि मेरे साथ जंग कर। तो जो है फिरौन खड़ा हो जाता है अपनी फौजों को लेकर, कहता जा यार चला जा, मैंने तेरे साथ जंग नहीं करनी। कहता क्यों नहीं जंग करनी? कहता मेरे खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। अब ये सुनिए गौर से, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। और कौन कह रहा है? फिरौन कह रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है। फिरौन कह रहा है होशिया, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। मैं बादशाह फिरौन हूं, लेकिन खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है। बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 35 वर्स 28 लिखा है, लेकिन उसने उसके एलचियों से कहला भेजा कि यहूदा के बादशाह, तुझसे मेरा क्या काम? मैं आज के दिन तुझ पर नहीं बल्कि उस खानदान पर चढ़ाई कर रहा हूं जिससे मेरी जंग है। मेरी जंग तो हित्तियों की फैमिलीज के साथ है, मेरी जंग तो क्रेकमस के लोगों के साथ है, तू बीच में क्या लेने आ गया? तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा ने मुझको जल्दी करने का हुक्म दिया। खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि हित्तियों की सल्तनत को तबाह करूं और हित्तियों की सल्तनत को मारूं। तेरी मेहरबानी, तू बीच में से निकल जा, तू बीच में से निकल जा, मुझे यहोवा खुदा ने हुक्म दिया। इसका मतलब है खुदा फिरौन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मर्तबा हम ये समझते हैं कि ये हुकूमतें ये पावरफुल है, ये सल्तनतें पावरफुल है, ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से है। तो खुदा किसी हुकूमत को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और यहां पर खुदा बादशाह किसको इस्तेमाल कर रहा है? फिरौन को। और फिरौन को कह रहा है, फिरौन कह रहा है खुदा ने डायरेक्ट मेरे साथ कलाम किया है। तो आप क्या समझते हैं कि खुदा फिरौन के साथ कलाम नहीं कर सकता? खुदा ने उस जमाने के अंदर, फिरौन हकीकत में एक टाइटल है जो मिस्र के बादशाहों के लिए, नेकवा इसका नाम है, इसके साथ खुदा ने डायरेक्ट कलाम किया। और खुदा ने इसको उठाया था कि ये क्रिकमस के अंदर जाए और वहां पर जाकर इन लोगों को, हित्तियों को मारे। लेकिन योशिया ने क्या किया? योशिया ने कहा ठीक है भाई, अगर तुझे खुदा ने कहा है तो आगे से सुनिए। इसने क्या किया? खुदा ने कहा कि जल्दी कर जाके मार। लेकिन ये जो खुदा प्रस्त बादशाह है, जो अपने आप को कहता है कि मैं एम्बेसडर हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं यहोवा खुदा को, इसका सलूक देखिए। इसने क्या किया? इसने कहा अच्छा चलो मैं चला जाता हूं। थोड़ी देर इधर हुआ, जाके भेष बदल लिया और भेष बदल के आ गया। जब भेष बदल के उस जंग के अंदर ये आया, होशिया, और ये बादशाह है इस्राइल का और बाप है यहोयाकीम का। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसको इतना मारा, तीर मार मार के इसको छननी कर दिया। जो फिरौन की फौजी है ना, उसने तीर मार मार कर इसको छननी कर दिया। और जब ये छननी हो गया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, अपने नौकरों को कहता है मेरे आखिरी सांस चल रहे हैं, उठाओ मुझे और भागो यहां से। भाई तुझे किसने कहा तू आ यहां पर? ये क्रिकमस की जो जंग है ये इन दोनों के अंदर है। हित्ती खानदान को तबाह करने के लिए खुदा ने फिरौन को उठाया, तो तू बीच में क्या कर रहे? एनीयो, इसको उठाया, ले गए यरूशलेम। जब ये यरूशलेम लेकर जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जरा गौर कीजिएगा ताकि आप इस तवारीखी हकायक को जान सके। 24वीं आयत, सो उसके नौकरों ने उसे उसके रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और उसे यरूशलेम को ले गए और वो मर गया और अपने बाप दादा की कब्रों में दफन हुआ। और सारे यहूदा और यरूशलेम ने योशिया के लिए मातम किया। और उस वक्त यिर्मयाह नबी थे। जब योशिया के साथ ये सलूक हुआ, उस वक्त यिर्मयाह नबी थे और यिर्मयाह नबी ने योशिया पर नोहा किया और गाने वाले और गाने वालियों ने मरसीहे पढ़े। सो इसका मतलब है नोहा लिखा उस वक्त मुकद्दस यिर्मयाह ने इस पर। जब ये सब कुछ हो गया तो बाइबल मुकद्दस में एक और चैप्टर हमें खुल जाता है। मर गया इस्राइल का बादशाह, इस्राइल खाली हो चुका है। अब उसकी जगह एक नया बादशाह मुकर्रर करना था। तो आइए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं। और बाइबल मुकद्दस के मुतालिया के लिए हमें दोबारा एक और हवाले की जानिब जाना पड़ेगा और यह है दूसरा सलातीन
सेकंड किंग्स, पहले हमने सेकंड क्रॉनिकल्स के अंदर से पढ़ा था और अब हम सेकंड किंग्स के अंदर से पढ़ने लगे हैं। सेकंड किंग्स दूसरा तवारीख, दूसरा सलातीन और उसका बाब नंबर 23 और 23वें बाब की 34 और 35वीं आयत का मुताला करते हैं। और फिरौन निको ने यूसिया के बेटे एलयाकीम को उसके बाप यहोशिया की जगह बादशाह बनाया। सो अब हुआ क्या, जब ये जंग खत्म हुई, क्रिसमस की जंग खत्म हुई, हित्तियों के ऊपर कब्जा किया फिरौन ने, और उसने देखा कि अब तो वो यरूशलेम जो खाली हो चुका है, मर चुका है, यहोशिया मर चुका है, और उसने क्या किया, वहां से अपनी अफवाज का रुख मोड़ा और सीधा यरूशलेम में आया। और जब फिरौन सीधा यरूशलेम के अंदर आया तो यरूशलेम का तख्त तो खाली था, तो उस तख्त के ऊपर बिठाने के लिए एक बादशाह चाहिए था। तो उसने उसी के बेटे को, यानी फिरौन निकोह ने यहूसी के बेटे को या यहूसिया के बेटे को लिया, जिसका नाम इलयाकीम था, और उसको उसकी बाप की जगह पर बादशाह बनाया और उसका नाम बदल दिया। और उसका नाम बदल के यहूयकीम रखा। तो ये है वो बादशाह यहूयकीम जिसका जिक्र आपको दानियल की किताब पहला बाब पहली आयत के अंदर मिलेगा। सो इस तरीके से यहूयकीम बादशाह बना, और जब यह बादशाह बना तो आगे बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं और भयानक भी हैं। और ये है क्या, हुआ क्या, लिखा है और यहूयकीम ने वो चांदी और सोना फिरौन को पहुंचाया, पर इस नगदी को फिरौन के हुक्म के मुताबिक देने के लिए उसने मुमलकत पर खराज मुकर्रर किया। यानी उसने उस मुल्क के लोगों से हर शख्स के लगान के मुताबिक चांदी और सोना लिया ताकि फिरौन निकोह को दे। अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे ये सल्तनत यहूदा की, यरूशलेम की फिरौन के हाथों के अंदर आती है, लगान लगा दिया गया, खिराज लगा दिया गया, जजिया लगा दिया गया। हर बंदा सोना और चांदी के सिक्के अदा करेगा यरूशलेम में रहने के लिए, और यह सबसे जिल्लत की जिंदगी होती है किसी कौम के लिए। जब आपके ऊपर लगान लगा दिया जाए, जब आपके ऊपर जजिया लगा दिया जाए, तो यरूशलेम के ऊपर जजिया लग गया, लगान लग गया, और आहिस्ता आहिस्ता यरूशलेम की हुकूमत जो थी कमजोर होना शुरू हो गई। अब यरूशलेम की हुकूमत कमजोर इसलिए हो रही है कि फिरौन को ये पैसा भेज रहे हैं, जितना वहां से रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है बादशाह के पास, बादशाह उसे उठाता है और उठा के सीधा जाके फिरौन को दे देता है। सोना, चांदी, अजनास, सारा कुछ, जितनी प्रोडक्शन होती है, जितनी लेबर काम करती है, वो सारी प्रोडक्शन के ऊपर, वो सारी चीजों के ऊपर जो जजिया है, जो लगान है, जो खराज है, वो सारे का सारा फिरौन के पास, मिस्र के पास जा रहा था। और दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता निबूकदनेस्सर जो है, जो नबूकदनेस्सर का बाप है, वो ताकतवर होता जा रहा है। यरूशलेम कमजोर होता जा रहा है, मिस्र ताकतवर होता जा रहा है। दूसरी जानिब इराक के अंदर जो हुकूमत है सोमेरियों की, निबूकदनेस्सर की, नबूकदनेस्सर की, वो स्ट्रांग होती जा रही है। आखिर हुआ क्या, किरकमस के ऊपर सबकी नजर थी। मैं आपको बताऊं, किरकमस एक ऐसी जगह है, अब जो यहूदी है ये तो लगड़े लूले हुए हैं। अब घर के अंदर पैसा ही नहीं है, तो जिस घर के अंदर पैसा नहीं है, लोगों ने उधर हमला क्या करना है जी, करने के लिए क्या लेना है वहां पर। लेकिन ये यहूदी जो थे, ये आराम से नहीं बैठती थी कौम, ये प्राउड बहुत थे, इतने ज्यादा प्राउड, मैं आगे चल के बताऊंगा इन्होंने हरकतें क्या शुरू कर दी। अब मेरे साथ रहिएगा। अब निबूकदनेस्सर बादशाह बन चुका है, शाहे मिस्र जो है, निकोह जो है, ये भी इस पावर के अंदर है, दोनों पावर्स के अंदर है, और दोनों की नजरें जो है वो किरकमस के ऊपर है। अब हुआ ये कि खुदा ने मौका दिया नबूकदनेस्सर को ताकि वो उठे और लोगों के ऊपर हमला करे और लोगों को फतह करे, कौमों कबीलों को। नबूकदनेस्सर के बादशाह बनने से पहले उसके बाप निबूकदनेस्सर ने हुक्म दिया कि चल भाई उठ
اور جا یہ کرکمس جو ہے ہتی جو ہے اس کے اوپر فرعونیوں کا قبضہ ہو گیا, اسے چھڑا اور اس کو اپنی سلطنت کے اندر کر, کیونکہ یہ دریائے فرات کے اوپر ہے اور فرات ہمارا ہے اور یہ ہماری سرزمین ہے, تو یہ ہماری سرزمین پر کیا کر رہا ہے, چل اٹھ. تو جو پہلا ٹائم تھا نبوکت نظر بادشاہ کا, اٹھا نبوکت نظر, اپنی فوجوں کو لیا اور فرات کے کنارے کنارے مارچ کرنی شروع کر دی. گھر سے نکلا فوجوں کو لے کر, مارچ کرتا 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 نبوکت نظر کرکمس کی جگہ پر پہنچا جہاں یہوسیہ کو تیر مار کے مارا گیا تھا, کیونکہ اس نے نجائز انٹرفیرنس کی تھی اور یقیم جو تھا اس وقت بادشاہ بنا تھا. تو اب جب یہ وہاں پر پہنچتا ہے نبوکت نظر بادشاہ کرکمس کے مقام پر پہنچتا ہے, تو جب وہ وہاں پر پہنچا تو ہتی تو پہلے سے کمزور تھے, تو ہتیوں کے اوپر تو فرعون کی حکومت تھی, تو فرعون کے لوگوں کو پتا چل گیا, مصر کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہاں تو نبوکت نظر آ گیا, نبوکت نظر نے حملہ کر دیا. تو نبوکت نظر کی فوج کو روکنے کے لیے مصر کے اندر سے مزید فوج بلائی گئی. تو کرکمس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت بڑی جنگ ہوئی, اور اس جنگ کے اندر ہوا کیا, مصر کے بہت سے لوگ مارے گئے, مصر کے بہت سے لوگ تباہ ہوئے, ہتی مارے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بابلی مارے گئے. لیکن بابل کی فوج تو آہستہ آہستہ طاقتور ہو چکی تھی اور خدا کا ہاتھ بابل کے اوپر تھا اور خدا کا ساتھ جو تھا وہ نبوکت نظر کے ساتھ تھا. ہوا یہ ابھی جنگ جاری تھی, ابھی جنگ جاری تھی. تو جنگ جاری کے اندر ہی ایک میسج آ گیا نبوکت نظر کو. نبوکت نظر کو ایک سپہ سالار آیا, اس نے آ کے میسج دیا, نبوکت نظر نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بات سن, خبر اچھی نہیں ہے. کہ کیا خبر کیا ہے؟ کہا تیرا باپ نیبوکدنیزر جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی. اس نے کہا اچھا میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا جنگ لگی ہے بابل کے اندر, عراق کے اندر, نیبوکدنیزر نبوکدنیزر بادشاہ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی. اب جب باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دو طرفہ کام ہوگا, یا تو وہ جنگ کرے یا جا کے حکومت سنبھالے. اگر وہ وہاں پر نہیں رہتا اور بادشاہ کا تخت خالی رہتا ہے تو اندر سے جو دشمن ہے نا انہوں نے آ کے قبضہ کر لینا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے بادشاہتوں کے اندر, ایسا ہوتا ہے. تو نبوکت نظر نے کیا کیا, اس نے کہا کہ اچھا بھائی ایسے ہے, میری جگہ پر اس نے اپنی جگہ پر کچھ اور بندوں کو تعینات کیا. گو اس ٹائم وہ بادشاہ نہیں تھا نبوکت نظر, ولی عہد تھا. اس نے ولی عہد ہوتے ہوئے یو ٹرن لیا اور اس کو جنگ کو جاری رکھا, کرکمس کی جنگ کو جاری رکھا اور کہا کہ چلو تم جنگ کرو, اور جنگ کرتے کرتے جو ہے نا ان لوگوں کو مارو, مصریوں کو مارو, بھگاؤ یہاں سے. اور بائبل مقدس کے اندر یہ ساری کہانی لکھی ہے. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو ہوا کیا, خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ واپس گیا بابل کے اندر اور جا کر اس نے اپنا تخت جو ہے سنبھال لیا, اپنے باپ کی تدفین کی, باپ کو دفنایا. دفنانے کے بعد نیبوکدنیزر کی جگہ پر پہلی مرتبہ جس کا ذکر بائبل مقدس میں نبوکت نظر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے یا بخت نصر کہا جاتا ہے, بخت نصر نے نبوکت نظر نے آ کے اس تخت کو سنبھال لیا. جب وہ تخت سنبھال لیا گیا تو جنگ تو جاری تھی. یاد کریں جنگ جاری ہے, ادھر تدفین ہوئی ہے, ادھر دفن کیا باپ کو, اور اپنے باقی سپاہیوں کا کہ جنگ جاری رکھو. اور آہستہ آہستہ ہوا کیا, فرعون کی فوجیں دم توڑ گئی. اور جب فرعون کی فوجیں دم توڑتی ہیں تو ساری جتنے بابلی فوجیں ہیں نا, بابلی افواج ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی. کہتے ہیں چلو ان کو مارتے ہیں, اور جا کر مصر کی سرحد تک. نوٹ کیجئے گا, یہ تاریخ کے اندر باتیں لکھی ہے, یہ دنیا کی بڑی بڑی کتب اٹھا کے دیکھیں, یہ بائبل کی جو تصدیق کر رہی ہے, یہ جو بائبل بتا رہی ہے نا, ہزاروں سال پہلے دنیا کی بڑی بڑی کتب کے اندر یہ واقعات ایسے ہی لکھے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں. یہ سارے کا سارا بائبل کا کلام ہے جو دنیا نے اٹھا کے تاریخ کے نام سے منسوب کیا, لیکن یہ سارا کچھ نکلا اس کتاب کے اندر سے ہے جس کا نام خدا کا کلام بائبل مقدس ہے, جو آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. ہوا کیا, جب وہ بھاگ رہے تھے, بھاگتے بھاگتے مصر کی سرحد کے اوپر پہنچے تو وہ اندر نہیں گئے, کیونکہ فوج تھوڑی تھوڑی کہا اندر گئے تو ہور مار کھاواں گے. اب نہیں, واپس آئے. وہاں سے انہیں وہاں تک چھوڑ کر, مصر کی سرحدوں تک چھوڑ کر بابلی فوج واپس آ رہی ہے. جب واپس آ رہی ہے تو راستے کے اندر کسی نے کہا کہ اچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو, تم چلو یہ راستے کے اندر جو ہے نا یہ اسرائیل کی بھی سلطنت آ رہی ہے, یہودا کی سلطنت آ رہی ہے, تو اس سلطنت کے اوپر بھی کرتے ہیں, چھوٹی سی جو سلطنت ہے تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی تو مصریوں ہی کی ہے نا. یہ ایکچولی مصریوں کی تھی,
क्योंकि बादशाह तो यहूदियों का था लेकिन बनाया तो मिस्र ने था। मेरे साथ रहिए, बादशाह यहूदियों का था यहू यकीम, लेकिन यहू यकीम को बादशाह मिस्र के फिरौन ने बनाया था और फिरौन की फौजों को मार रहे थे बाबली। तो उन्होंने कहा अच्छा तो इस तरह करते हैं कि चलते 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 वो सारे के सारी फौजें जो है वो यहूदा के अंदर आ गई, यरूशलेम के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की। तो यरूशलेम तो अंदर से पहले ही कमजोर था, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था, इतना चीजें नहीं थी, वो कमजोर हो चुका था और वो सिर्फ दुआओं पर ही इन्हिसार करता था, चाहे यहोवा खुदा बचा, यहोवा खुदा बचा। तो यहोवा खुदा की तो ऑलरेडी नाफरमानी कर चुकी है, यहोवा खुदा की तो नाफरमानी के सबब से ही तो खुदा ने नबूकदनेस्सर को उठाया था। नबूकदनेस्सर बाबल के अंदर बैठा है पहली मर्तबा 605 कबल अज मसीह में। नोट करें जरा, 605 कबल अज मसीह में बाबली फौजों ने यरूशलेम को घेरा और बगैर किसी मज़ाहमत के, बगैर किसी झगड़े के, लड़ाई के सारे हैंड्स अप हो गए। उन्होंने कहा बाबली आ गए, बाबली आ गए, बाबली आ गए। कहा आओ अंदर आए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है दानियल की किताब और उसका चैप्टर नंबर 1, वहां पर लिखा है उन्होंने वहां से लोगों को उठाया, यहूदा के लोगों को, और उनमें से बुजुर्ग दानियल को कैद कर लिया। पहली मर्तबा 605 कबल अज मसीह में, 605 कबल अज मसीह में पहली मर्तबा दानियल को कैद कर लिया गया। कहा चलो दानियल इनको पकड़ो और दानियल को ले चलो। फिर दानियल के साथ हनन्याह को भी कैद कर लिया गया, फिर मिसाएल को भी कैद कर लिया गया, और फिर उजरिया को भी कैद कर लिया। तो ये 4 अशखास थे जिनका जिक्र दानियल की किताब के अंदर आता है। और ये 605 में जब क्रिसमस की लड़ाई से फारग हुए बाबली और भगा रहे हैं मिस्रियों को मिस्र की सरहद तक, वहां से वापसी पर आकर यरूशलेम पर हमला करके इन तमाम लोगों को कैद करके, और बाकी हित्तियों को कैद किया, बाकी और लोगों को कैद किया, तो सारों को कैदी बना के अड़बंगे बेड़ियां पहनाकर हथकड़ियां लगाकर पैदल चलाना शुरू किया। चलो, और पैदल चलाते 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 लंबा तवील सफर करवा के इन्हें पहुंचा दिया बाबुल के अंदर, इराक के अंदर, जहां पर सुन्नार का बादशाह हुमुराबी के बाद नबूकदनेस्सर बादशाह बन चुका था और नबूकदनेस्सर के दरबार के अंदर इन्हें पेश किया गया। आगे जाकर हम इसको जानेंगे। मैंने कल भी बताया था कि जो काफ मीम है ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे आता है, और जो एडी है या मसीही सन है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता है। जैसे आज 2020 है और अगले दिनों में 21 हो जाएगा, लेकिन जो कबल अज मसीह है ये पीछे आता है। सो 605 के अंदर ये हमला हुआ और 601 के अंदर बाबल और मिस्र में जंग हुई। दोबारा 601 में बाबल और मिस्र में जंग हुई, और जब जंग हुई तो जो यहू यकीम था ये उस वक्त कैद नहीं हुआ था। याद रहे, यहू यकीम 605 में कैद नहीं किया, उसको बादशाही रखा। उसने कहा तू बादशाही रह, आराम से कट पुतली सा तो बंदा है, ना कुतरा अगे ना कुतरा पीछे, भी तमाशा लाया, बैठा रहा आराम थे। तो बाबलियों ने उसको बैठाए रखा, ले गए नबियों को उठा के, शहजादों को उठा के ले गए, लेकिन बादशाह को नहीं उठाया। तो 601 में इसे फिर शरारत सूझी यहू यकीम को। यहू यकीम ने कहा अच्छा बाबली लड़ रहे हैं, बाबली और मिस्री दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है, इनके अंदर लड़ाई शुरू हो गई है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अकड़ जाता हूं। और मैं क्यों अकड़ूं, पहले ये जजिया जो था देता था मिस्र को, सोना चांदी हीरे जवाहरात लोहा पीतल तांबा अजनास सारी यरूशलेम की मिस्र को जाती थी। हर महीने हर साल चीजें उठाई जाती, फसलें उठाई जाती और उठा के मिस्र में ले जाई जाती। अब 605 के बाद सारी अजनास जो है, सारे लगान जो है, सारा जजिया जो है, सारा टैक्स जो है, सारा पैसा जो है वो बाबुल के अंदर जा रहा है, क्योंकि वहां पर थोड़े से शहजादों को कैद किया हुआ है, यहूदियों को कैद करके वहां पर रखा हुआ है, और यहूदी वहां पर दरबार के अंदर हाजिरी दे रहे हैं, तो वो लगान तो वहीं जाएगा, पैसा तो वहीं जाएगा। यरूशलेम आहिस्ता आहिस्ता कंगाल होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है, और उसके खाली होने की वजह से दिमाग घूम गया यहू यकीम का,
और 601 में यहू यकीम ने कहा जी मैं अब खराज नहीं दूंगा मिस्र को, और मैं अब उसने अपने आप को विड्रॉ कर दिया, मिस्र को खराज देना बंद कर दिया। और दूसरी जानब अपने लोग कैद में हैं, और उस कैद के अंदर बड़ा एक अजीब वाकया हुआ, और ये वाकया उस वक्त हुआ, कई मरतबा हम ये समझते हैं, मैं अल्लाह थोड़ा यहाँ रुक रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, यहाँ पर कई मरतबा हम समझते हैं कि यह बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो आया और उसने सारे लोगों को, नहीं एकदम नहीं सारे यहूदी गए, याद रहे ये इस गलत फहमी से निकली है। एकदम सारे यहूदियों को अरेस्ट नहीं किया गया, एकदम सारे यहूदियों को मारा नहीं गया, इसके स्टेप्स हैं। हमले गो 5 हुए हैं, 5 मरतबा अटैक हुआ है यरूशलेम के ऊपर किया है बाबलियों ने, लेकिन 3 मरतबा बड़ी असीरियां हुई हैं। जो असीरियां हुई है ना, जब कैद हुई है, जब कैप्टिविटी के अंदर लोग गए हैं, वो 3 मरतबा है। पहली मरतबा पहला जो सेशन हुआ है ना, या पहला हिस्सा जो है वो 605 में हुआ था, और 605 में बड़ी तादाद से लोगों को उठाकर यरूशलेम से बाबल के अंदर, इराक के अंदर ले जाया गया। लेकिन दूसरी मरतबा दिसंबर 598, दिसंबर 598 BC कबल अज़ मसीह में एक और बड़ा वाकया हुआ। आइए मैं आपकी तवज्जो उस वाकया की जानिब लेकर जाता हूं ताकि आप इसको जान लें कि हुआ क्या। आइए मेरे साथ देखिए यिर्मयाह नबी की किताब द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 36 और चैप्टर 36 की आयत नंबर मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं 28 से। 28 के अंदर यूं लिखा है, हुआ क्या था? हुआ ये कि ये जो यहू यकीम था ना, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे लोग पकड़े गए हैं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि दानियल जो है वो कैद के अंदर है। इसे अभी भी यकीन शायद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो थे ना चुक्कन वाले, एक कहीं यकीन नहीं करन देते। बंदे ने पता लग जाता मैं हार गया हुआ, लेकिन चुक्कन वाले ने ना 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 तो कुछ नहीं होता। भाई एक खुदा ने आपके ऊपर इतनी बड़े अजाब डाले हैं तो मान लो गालू, लेकिन यहू यकीम ठीक तरीन आदमी, ठीक तरीन बादशाह मानने को तैयार ही नहीं है। जजिया बंद कर दिया, और उस दौरानिया के अंदर झूठे नबी जो थे ना यहू यकीम की हुकूमत के अंदर, मैं इसको समझिए, गौर कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि दानियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया, जिसे हम बुतों के नाम से मंसूब करके और अपने पैगामात के अंदर उनके नाम लेते हैं, जैसे दानियल, सदरक, मिसक, अब्दनजू, ये सारे बुतों के नाम है। मेहरबानी करके अपने लेक्चर्स में इन नामों को इस्तेमाल ना किया करें। ये आइडल वर्शिपर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो मसीही ईमान है, मसीही अकीदे के मुताबिक सदरक, मिसक और अब्दनजू जो है ये बुतों के नाम है, और हमें इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके जो ओरिजिनल नाम है हननियल, मिसाइल और अजरिया और दानियल, ये नाम हमें इस्तेमाल करना वाजिब है। तो इनको तो जब कैद के अंदर रखा हुआ था, तो दूसरी जानिब बादशाह के पास जो कान भरने वाले थे, झूठे नबी, वो बहुत ज्यादा थे। झूठे नबियों की तादाद बहुत ज्यादा थी यरूशलेम में। होता ये था कि एक टाइम में सच्चे नबी नबूवत कर रहे और झूठे नबी भी साथ नबूवत। झूठे नबी पता क्या कहते थे यहू यकीम को आके, यहू यकीम सुनी यार, तो ये खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है, और कलाम क्या किया है, वापस आ जाएंगे सारे, ये होगा ही नहीं, तू बड़ा पावरफुल हुआ, देख हमने मिस्र को मारा, आप बाइबल को पढ़ो, आप फलां किताब के अंदर ये लिखा फलां। और इतनी मिस इंटरप्ट करते थे, इतना मिस गाइड करते थे, मिस लीड करते थे। रात को पुट्ठे ख्वाब वेंदे सन आपी, और सुबह उठ के बादशाह को प्रेस करने के लिए, बादशाह को खुश करने के लिए जाके नबी नबूवत कर रहे हैं, कहा झूठी कहानत कर रहे हैं। सो वो जमाना था इसराइल के अंदर रिलीजियस करप्शन का। तो ये जो रिलीजियस करप्शन है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कौमों को तबाह करके रख देती है। पॉलिटिकल तो वो जलील हो ही रहे हैं, इसराइली पॉलिटिकल तो जलील हो रहे हैं, लेकिन अब रिलीजियस भी करप्शन आ गई है। और इतना दिमाग खराब किया यहू यकीम का इन लोगों ने, झूठे नबियों ने और झूठे काहिनों ने झूठी नबूवतें कर
करके। आइए डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह की किताब द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 36 और उसकी 28 आयत से यहां पर यूं लिखा है, और शाहे यहूदा यहोयाकीम से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने तुमार को जला दिया। हुआ ये था, वाकया ये हुआ कि 9वां महीना था यरूशलेम के अंदर, और 9वें महीने को सर्दी पड़ रही थी, और सर्दी के दौरान यहोयाकीम अपनी कोठरी के अंदर बैठा था। और बाइबल मुकद्दस में चैप्टर 36 के अंदर लिखा है, ये अपनी कोठरी के अंदर है। जब यहूदी ने 3-4 वर्के पढ़े तो उसने उस मुंशी से कलम तराज से को बुलाया, तो वो पढ़ रहा था, बैठ के सहीफा पढ़ रहा था, यिर्मयाह नबी का सहीफा। बाइबल में जो बड़ा सहीफों में से सहीफा है यिर्मयाह नबी का। तो एक यहूदी नामी शख्स है जो पैगाम लेकर आया था यिर्मयाह का, और बारूक बिन नीरिया ये एक शख्स है जो कातबे वही है। कातबे वही ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है। कातबे वही का मतलब ये है कि ये शख्स यिर्मयाह नबी को जब इल्हाम होता था, खुदा यिर्मयाह नबी के साथ कलाम करता था, इल्हाम के दौरान यिर्मयाह को इल्हाम हुआ है, खुदा ने कलाम किया, और कलाम के दौरान जैसे जैसे खुदा बोलता जाता था यिर्मयाह नबी सुनता जाता था, और सुनते 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 जो बारूक बिन नीरिया था वो साथ बैठा होता था, वो उसी वक्त कागज लेता, कलम लेता और इस इल्हाम को मनोअन लिखता जाता। खुदा ने इल्हाम दिया यिर्मयाह को कि यिर्मयाह इनसे कह कि ये हरकतें छोड़ दे, ये हरकतें छोड़ दे, आराम से सुकून से रहे, क्योंकि बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर ने कब्जा कर लिया है। ये वहां पर हिजकिय्याह, वहां पर दानियल बादशाह नबी चला गया है, वहां पर हननिएल है, वहां पर मिसाएल है, वहां पर अजरा है, वहां पर हमारे नबी हैं, वहां पर सच्चे काहिन है। उन्हें रहने दे, वो वही रहेंगे और उनको वही सुकून करने दो। लेकिन ये जो यहोयाकीम था, इनके पास झूठे नबी थे, तो झूठे नबी कहते ना 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 ये वापस आ जाएंगे, जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे। खुदा ने कहा 2 साल के अंदर, 2 साल, सिर्फ 2 साल। सो 2 साल के लिए तो प्रेपरेशन का जंग करेंगे दोबारा। तो खुदा ने वही लिखवाई, कातबे वही बारूक बिन नीरिया ने लिखा, एक पूरा मैसेज लिखा, एक बड़ा तुमार लिखा, और तुमार लिख के जो था यहूदी नामी एक शख्स था, और उसे दे दिया। जब उसे दे दिया तो आगे पढ़ते हैं 23वीं आयत, 23 आयत के अंदर लिखा है, और जब यहूदी ने 3-4 वर्के पढ़े तो उसने उसे मुंशी के कलम तराश से काटा और अंगीठी की आग में जला दिया, यहां तक कि तमाम तुमार अंगीठी की आग में भस्म हो गया। खुदा के कलाम का सहीफा लिया, खुदा के इल्हाम को लिया, यिर्मयाह की किताब के तुमारों को लिया, यहोयाकीम ने सेंटर से कलम पकड़ी, कलम के साथ यूं करके उसको फाड़ा। फाड़ने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करने के बाद सामने 9वां महीना था, अंगीठी जल रही थी। बाइबल में लिखा अंगीठी जल रही थी, आग जल रही थी। एक एक टुकड़ा करके डालता गया और कहता ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है, फेंकता गया। है अजीब आदमी। जब ये सब कुछ हुआ तो 28 आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने क्या किया, और जब बादशाह तुमार और उन बातों को जो बारूक ने यिर्मयाह की जुबानी लिखी थी जला चुका, तो खुदा का कलाम यिर्मयाह पर दोबारा नाज़िल हुआ। और खुदा ने क्या कहा कि तू दूसरा तुमार ले और उसमें वो सब बातें लिख जो पहले तुमार में थी, जिसे शाहे यहूदा यहोयाकीम ने जला दिया। भाई अभी भी तो जलील हो रहे हैं और अभी भी तो खुदा के कलाम को जला रहे हैं। तो ये यहूदी बादशाह जो है, इन्होंने बड़ी बड़ी बदतमीजियां की हैं। बाहर से इतना जलील नहीं यहूदी हुए जितने अंदर से रिलीजियसली यहूदी जलील हुए हैं। तुम्हारों को जलाया जा रहा है, नबियों को मारा जा रहा है। ये नबी की, ऐसे नहीं यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम नबियों के कातल हो। ये है वो काम कर रहे, ये है वो बादशाह जिन्होंने यिर्मयाह कलाम लिखता है। बारूक बिन नीरिया बेचारा सारा दिन किताबत करता रहता, लिखता रहता। तुमार बड़े बड़े लिख रहा है और बड़े बड़े तुमार पर खुदा के इल्हाम को दर्ज कर रहा है। तो बादशाह उसे जला जला कर फेंकता जा रहा है, मारता जा रहा है, जला जला कर फेंकता जा रहा है। दोनों बेचारे जो है छुपे हुए हैं।
यिर्मयाह भी छुप गया है, बारूक बिन नीरिया भी कहीं जाके छुप गया। और बाइबल में लिखा खुदा ने इन्हें छुपा दिया था, जैसे एलिया ने छुप गया था ऐसे ये छुपे हुए थे। और यहोयाकीम जिसका जिक्र दानियल की किताब के पहले चैप्टर के अंदर शुरू में आता है, ये तुम्हारों को जला रहा है। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, और शायद यहोयाकीम से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, तूने तुम्हार जला दिया और कहा कि तूने इसमें यूं क्या लिखा है कि शायद बाबुल यकीनन आएगा और इस मुल्क को गारत करेगा। और सुन यिर्मयाह, 2 साल के अंदर हम बाबुल की हुकूमत को खत्म करेंगे और तेरा खुदा कह रहा है कि गारत कर देंगे। जा, मैंने जला दिया। खुदा ने कहा इसको लिख के दोबारा मैसेज कर, इसको दोबारा मैसेज कर इसको, और उसको कह, यहोयाकीम बाबुल जलेगा, बाबुल बर्बाद होगा। लेकिन बाद में अभी यरूशलेम की बारी है, अभी यरूशलेम बर्बाद होगा, अभी यरूशलेम जलेगा, यरूशलेम को जलील किया जाएगा, तेरे नबियों को जलील किया जाएगा। लिख इसको, तेरी सल्तनत को तबाह किया जाएगा। लिख इसको, लिख, यकीनन वो दिन आएगा और इस मुल्क को गारत करेगा और ना इसमें इंसान बाकी छोड़ेगा, ना हैवान। अभी तो सिर्फ दानियेल को लेकर वो गया है, अभी तो सिर्फ हननिया गया है, अभी तो सिर्फ मिसाएल गया है, अभी तो सिर्फ उजरया गया है, अभी तो सिर्फ चंद लोग गए हैं। लेकिन वो दिन आएगा, तेरे हैवानों को भी, तेरे इंसानों को भी नबूकत नजर आएगा और उठा के यहां से ले जाएगा, खुदावंद फरमाता है। और आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा, इसलिए शाहे यहूदा यहोयाकीम की बाबत खुदावंद यूं फरमाता है कि उसकी नस्ल में से कोई ना रहेगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे, और उसकी लाश फेंकी जाएगी ताकि दिन को गर्मी में और रात को पाले में पड़ी रहे। हिजकिय्याह, तूने तुम्हार फाड़ा खुदा का। यहोयाकीम, यहोयाकीम, तूने तुम्हार फाड़ा खुदा का, तूने तुम्हार फाड़ा इल्हामी तुम्हार को फाड़ा। अब सुन, तेरे हिबान भी यहां से जाएंगे, तेरे इंसान भी बाबुल के अंदर जाएंगे। और फिर सुन, तेरी लाश जो है, तुझे तो बड़ी इज्जत के साथ छोड़ दिया था ना उस हमले के अंदर, 605 में तुझे तो छोड़ दिया था। लेकिन अब सुन, अब होगा क्या? अब जब आएगा ना नबूकदनेस्सर दोबारा तेरे मुल्क के अंदर, यरूशलेम के अंदर, तो वो करेगा क्या? तेरे हैवानों को भी ले जाएगा। लेकिन होगा क्या आगे? पता क्या बड़ा खास पैगाम है? तेरी लाश, तेरी लाश गर्मी में पड़ी रहेगी और पाले के अंदर पड़ी रहेगी, और तेरी नस्ल के लोगों में से एक भी नहीं होगा जो तेरे तख्त पर बैठे, दाऊद के तख्त पर बैठे। और मैं क्यों ये करूंगा? क्योंकि तूने मेरे तुम्हारों को फाड़ा और मेरे हुक्म की नाफरमानी की। एक और हवाला देखेंगे इसके साथ ही, और वो हवाला है यिर्मयाह की किताब, उसके 22वें बाब के अंदर, 22, यिर्मयाह द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 22। चैप्टर 22 के अंदर यूं लिखा है कि हुआ क्या था, क्यों खुदा ने यह किया था। इसकी स्टोरी सुनिए। जब ये पैगाम दे दिया तो इसे चैन नहीं आया। जब ये पैगाम मिल गया ना कि तेरी लाश जो है वो बाहर गर्मी में पड़ी रहेगी, रात को पाले के अंदर पड़ी रहेगी, और कोई उसे दफनाएगा नहीं, कोई उसे कफनाएगा नहीं, जैसे गधा होता है ना, गधा। ये बाइबल में लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाइबल के अंदर लिखा है जैसे गधा पड़ा रहता है और उसे कोई दफनाता नहीं है, तेरे साथ भी ऐसा होगा यहोयाकीम। अब यहोयाकीम ने क्या किया? उसने कहा अच्छा ऐसा होगा। तो उसने लोगों के साथ मशवरत शुरू की और फिर यिर्मयाह के खिलाफ हो गया। और 22वीं चैप्टर के अंदर यूं लिखा है, 18वीं आयत के अंदर,
लिखा है, बस तुम अपने नबियों और गैबदानों और ख्वाबीनों और शगुनों और जादूगरों की ना सुनो जो तुमसे कहते हैं कि शाह बाबल की खिदमत गुजारी ना करो, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं ताकि तुम्हारे मुल्क से आवारा करें, और मैं तुमको खारिज करूंगा और तुम हलाक हो जाओगे। खुदा ने कलाम कर दिया था कि इस झूठे नबियों से बाज आओ, लेकिन इसने ना किया। आखिरकार हुआ क्या? आखिरकार 598 BC में फौजों ने फिर सफर शुरू कर दिया और नबूकदनेस्सर ने हुक्म किया, देखिए जरा गौर कीजिएगा, इधर तुम्हार फाड़ा, खुदा ने इल्हाम दे दिया, दोबारा तुम्हार लिखवा दिया कि तेरी मौत गधे की सी मौत होगी, तेरी लाश भी दफनाई नहीं जाएगी, तेरी लाश के अंदर कीड़े भी पड़ेंगे, तेरी लाश जो है पाले के अंदर भी पड़ी रहेगी, और तेरी लाश रात दिन के गर्मी के अंदर रहेगी। तूने खुदा के काम किस अंदर रखना डाले ना, तेरे साथ ये सलूक होगा, बादशाह सुन ले। और हुआ क्या? उधर खुदा ने नबूकदनेस्सर को फिर पैस मैसेज दे दिया, देखिए खुदा का काम। खुदा ने नबूकदनेस्सर को मैसेज दिया, नबूकदनेस्सर उठा और उठ के उसने हमला कर दिया। अब जब हमला कर दिया तो हमला करने के बाद जो पहला काम हुआ वो ये था। आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, दूसरी सलातीन सेकंड किंग्स चैप्टर 24। सेकंड किंग चैप्टर 24। अब हुआ क्या, कैसे हमला हुआ, इस हमले की डिटेल आज मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप जान सके हमला हुआ कैसे। लिखा है 24वीं आयत के अंदर, 24वें चैप्टर के अंदर यूं लिखा है, उसी के अय्याम में शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 बरस तक उसका खादम रहा। 3 साल, यानी 605 में उसने चढ़ाई की और मारा और बहुत से लोगों को ले गया। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो 3 साल तक उसका खादम रहा। तब वो फिरा और उससे मुनहरफ हो गया, और खुदावंद ने कसदियों के दल और इराम के दल और मुआब के दल और बनी अमून के दल उस पर भेजे और यहूदा पर भी भेजे, ताकि जैसा खुदावंद ने अपने बंदे नबियों की मार्फत फरमाया उसे हलाक करे, उसे मारे, उसे हलाक करे। सो खुदा ने ऐसे लोगों को भेजा कि जाओ इसको हलाक करो, और आखिरकार मारा गया। और मारने के बाद जैसे वो मर गया 598 काफमीम में उसको मार दिया गया, जैसे उसका कत्ल हुआ, जलील हुआ यहोयाकीम। उसके बाद उसका बेटा जो है यहोयाकीम का, उसका बेटा तख्त नशी हुआ। और ये चैप्टर 24 सेकंड किंग्स चैप्टर 24 वर्स 8 के अंदर ये आपको मिलेगा। और यहोयाकीन जब सल्तनत करने लगा तो 18 वर्ष का था, उसका 18 वर्ष का बेटा था। तो नबूकदनेस्सर ने कहा कि इसके बेटे को बादशाह बना दो, और उसका नाम था यहोयाकीन। यहोयाकीम के बेटे का नाम यहोयाकीन था, और यहोयाकीन को जो है वो बादशाह बना दिया गया। उस वक्त वो सिर्फ 18 साल का था, और उसको 3 महीने बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने 3 महीने सल्तनत की, और उसकी माँ यरूशलेमी थी। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हुआ क्या, जैसे उसने दोबारा हमला किया उसमें उस वक्त शाह बाबल नबूकदनेस्सर के खादमों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और शहर का मुहासरा किया, और शाह बाबल नबूकदनेस्सर भी उसके खादमों ने उसका मुहासरा कर रखा था वहां आया। तब शाह यहूदा यहोयाकीन अपनी मां और अपने मुलाजमों के साथ उसने उसको भी अरेस्ट कर लिया। 3 महीने पहले बाबल की फौजों ने आके यहोयाकीन को मारा, उसके बाद यहोयाकीन बादशाह बन गया। बाबल का बादशाह दोबारा वापस आया, 3 महीनों के बाद खुद आया, और खुद आके उन सब को कैद किया, उस सारी सल्तनत को ऑर्गेनाइज किया। और उस सल्तनत को ऑर्गेनाइज करते करते उसने किया क्या, ये है वो हमला जिसने जड़ें उखाड़ के रख दी यरूशलेम की, जिसने यहूदी तारीख का रुख बदल दिया, जिसने यहूदियत का रुख बदल दिया। यहोयाकीम 3 महीने पहले जलील करके मारा गया, यहोयाकीन बादशाह बन गया। 3 महीने के बाद दोबारा नबूकदनेस्सर आया, आकर दोबारा नहीं बल्कि पहली मर्तबा आया उस टाइम में, और आकर उसने किया क्या, उसने जो पहला काम किया जरा सुनिएगा। पहला काम उसने किया, और खुदावंद के घर के सब खजानों
اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا. پہلا کام اس نے کہا چلو جو جتنے برتن ہیں پیک کرو, چلو جتنے خزانے کے اندر پیسے ہیں یہ بھی نکالو کیونکہ میں خود آیا ہوں. یہویکین بادشاہ بنا ہے, 18 سال عمر ہے, تیسرا مہینہ ہے اس کی سلطنت کو. باپ کو مرے 3 مہینے ہوئے. نبوکدنضر آیا, نبوکدنضر محل کے اندر گیا, خزانے اٹھائے, سونا اٹھایا, چاندی اٹھائی, برتن اٹھائے. وہ برتن جو سلیمان نے ہیکل میں رکھے تھے اسے بھی اٹھا لیا اور خداوند کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ وہ تھا نا حزقیہ جس نے کہا آ تجھے دکھاؤں سونا, آ تجھے دکھاؤں چاندی, آ تجھے دکھاؤں ہیرے, آ تجھے دکھاؤں جوہرات. تیری عمر جو 15 سال بڑی تھی. تو اب خدا کلام کرتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے ساتھ ساتھ ہوا کیا, سارا سونا چاندی اٹھایا اور سارے یروشلم میں سے سب سرداروں اور سب سورماؤں میں سے جو 10,000 آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر لیا. دستکاروں جو کام کرنے والے ورکر تھے ان کو بھی, لوہاروں کو جو اسلحہ بناتے تھے ان کو بھی, جو تلواریں بناتے تھے, بھالے بناتے تھے, نیزے بناتے تھے, برچیاں بناتے تھے, نہتا کر دیا. تاکہ جب کاریگری کوئی نہیں ہوگا, نہ اسلحہ بنے گا نہ کچھ, تو نے کہا چلو اسلحے بنانے والوں کو بھی گرفتار کرو, سونا بھی لو, چاندی بھی لو, ہیرے بھی لو, جوہرات بھی لو, ہیکل کے برتن بھی لو, جو باقی بچتا توڑو اس کو. سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوائے کنگالوں کے, امیر سارے اریسٹ کر لیے, سوائے کنگالوں کے باقی سب کو لے گیا, کنگال چھوڑ گیا. اور یہویکین کو وہ بابل لے گیا اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے عہدیداروں اور ملک کے رئیسوں کو اور اسیروں کو یروشلم کے اندر اسیر کر کے لے گیا. اور سب طاقتور آدمی, غور کیجئے گا, اور سب طاقتور آدمیوں کو جو 7,000 تھے, تھوڑے نہیں 7,000, اور دستکار اور لوہار جو 1,000 تھے, کاریگر بڑے سپر کاریگر تھے جو حکومت کو سپلائی کرتے تھے اسلحہ, 1,000 ان کاریگروں کو بھی, اور سب سے مضبوط جنگ کے لائق جو لوگ تھے, سپاہی جو تھے, اور جو نئی بھرتی ہو رہی تھی سپاہیوں کی, ان کو بھی لے گیا. اور بابل اسیر کر کے لے گیا, اور شاہ بابل اسیر کر کے لے گیا, اور شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی متنیہا کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کے صدقیہ رکھ دیا. یہویکین کو ساتھ لے گیا, یہویکین مر گیا, باپ یہویکین مر گیا گدھے کی موت. یہویکین 3 مہینے بادشاہ بنا, اس کو اٹھایا ساتھ لے گیا, اور اس کے بعد اس کے چچا زاد بھائی کے بیٹے صدقیہ کو بادشاہ بنا دیا. تو یہ تو تھی وہ کہانی جو ابھی جاری ہے کہ اس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ یہودیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا. یہ ہے یہودیوں کی تاریخ, یہ ہے وہ تاریخ, یہ ہے وہ جنگیں جن کا ذکر بائبل مقدس کے اندر آلریڈی موجود ہے, اور جو تواریخ کی کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے. تواریخ اس سے بھری پڑی ہے. لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, خدا ریلیجس لیڈرشپ کو اٹھاتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ریلیجس لیڈرشپ خدا کی طرف سے ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ خدا کی طرف سے ہے. دونوں لیڈرشپس جو ہیں, ریلیجس لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ, دونوں خدا کی طرف سے ہیں. اگر کوئی خدا کا کام نہیں کرتا تو خدا کسی اور کو اٹھا دیتا ہے, کیونکہ وہ کسی کا طرفدار نہیں. اس نے بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو اٹھایا, اس نے فرعون نکواہ کو کلام کیا, اس کو اٹھایا. اور جب اپنے لوگ, خدا پرست لوگ چھوڑ جاتے ہیں, خدا کو نافرمان ہو جاتے ہیں, تو خدا کسی کو بھی اٹھا لیتا ہے. خدا کسی کو بھی اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ کسی کا طرفدار نہیں, وہ اپنا کام چاہتا ہے. آج کے دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے پولیٹیکل لیڈر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پوسٹ پر بیٹھے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں فیصلے ٹھیک کر رہے ہیں. خدا انٹرفیرنس کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, پریشان نہ ہو جائیے گا. پاکستان کے اندر ایک صدا ہمیشہ سے رہی ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, آنکھ کھولی ہے, تب سے ہی یہ میرے کانوں کے اندر صدا پڑ رہی ہے, ہمارا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے, ہمارا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہوتا پتہ کیا ہے, خدا قوم کو دیکھ کر لیڈر دیتا ہے. جس طرح کی قوم اس طرح کے لیڈر. قوم کرپٹ ہو چکی تھی, جوش, خدا نے لیڈرشپ بھی کرپٹ ہی دی. اور اگر آج ہم مسیحی لوگ صوفوں پہ بیٹھ کے
घरों के अंदर बैठ के पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, एतराज करते हैं, तो ये आप ही का नतीजा है। और अगर रिलीजियस लीडरशिप पर एतराज करते हैं तो भी आपका नतीजा है। दोनों लीडरशिप्स जो है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप है, वो डिपेंड करता है नेशन के ऊपर, कौम के ऊपर। कौम कैसी है, लोग कैसे हैं। करप्ट है लोग तो खुदा ऐसी लीडरशिप दे देगा। हर मर्तबा मूसा नहीं आएगा। कौम की दुआ के सबब से मूसा आएगा, कौम की आहो पुकार के सबब से मूसा आएगा। हिजकिया बादशाह ने गलत दुआ की और उसका नतीजा भुगत रही है सारी इस्राइल, भुगत रहे हैं सारे लोग। तो आज के सेशन के अंदर मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा हुकूमतों को संभालता है। कोई ऐसी दुनिया के अंदर हुकूमत नहीं है जिसके अंदर खुदा इंटरफेरेंस नहीं करता। आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है, हुकूमतें चला रही हैं, हुकूमतें चीख रही हैं। मैंने एक मैसेज दिया कि कोरोना वायरस क्या खुदा का गज़बे इलाही है, शदीद गुस्सा है। कई लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। इस फिक्रे को जब हमें नजर आ रहा है कि खुदा शेक करता है लोगों को, पार्लियामेंट को शेक करता है, अदारों को शेक करता है। और आज सारे के सारे अदारे, कोई प्राइम मिनिस्टर रो रहा है, कोई प्रेसिडेंट रो रहा है, कोई कांग्रेस के अंदर लोग रो रहे हैं, लोग अपने अपने अदारों के अंदर रो रहे हैं और टर्न कर रहे हैं खुदा की जानिब कि खुदा कोई है। इस्राएली भूल गए थे अपनी प्राइड, अपने गुरूर के अंदर आ गए थे और उन्हें मिस गाइड करने वाले झूठे नबी, झूठे काहिन। सो कई मर्तबा पॉलिटिकल लीडरशिप को गाइड करने के लिए झूठे नबी साथ आ जाते हैं और ऐसा गाइड करते हैं कि उनकी नस्लें बर्बाद कर देते हैं। ऐसा गाइड करते हैं, ऐसा यूज करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को कि उनको और उनकी नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। ये आज हमने सीखा है, बर्बाद करके रख दी उसकी नस्ल। हिजकिया से कहा तेरी नस्ल के लोग ख्वाजा सरा खुसफे बनेंगे। यहोयाकीम को खुदा ने कहा तेरी नस्ल अब तख्त पर नहीं बैठेगी, तेरी लाश गधे की तरह होगी जो न दफनाई जाएगी, रात सारी पाले में पड़ी रहेगी सर्दी में और दिन सारा गर्मी में पड़ी रहेगी। कीड़े पड़ेंगे तेरी लाश को। झूठे नबियों से और झूठी नबुव्वतों से बाहर आए। मैं उन रहनुमाओं के साथ अब कलाम कर रहा हूं, मैं उन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ अब कलाम कर रहा हूं। खुदा इस मैसेज के अंदर से, हिस्टोरिकल मैसेज के अंदर से एक मैसेज हमें दे रहा है कि आए दिन आपके लिए लोग दुआएं करते हैं। अगर कोई लीडरशिप आ जाए ना, देखिए पता होता क्या है, लीडर आज को पार्लियामेंट के अंदर क्रिश्चियन लीडर चला जाता है, कोई एमपी बन जाता है, कोई एमएनए बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई सेनेटर बन जाता है, तो दुआवां दी लाइन लग जाती है। ओ खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। शहजादे हो ऐदी ऑलरेडी होया है। इसी के अंदर लिखा है लीडरशिप खुदा देता है, इसके अंदर लिखा है। मुझे तो पहले पता था, खुदा ने मुझे बता दिया था कि इसको मैं पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाऊंगा, मैंने नबूवत की है, ये पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। मैंने भाई ये है सच्चा कलाम जिसने कहा है कि खुदा लीडर्स को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाता है और अपना खादम बनाता है। तो ये वो टाइम होता है जब झूठे नबी आपके साथ खड़े होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो रिलीजियस लीडरशिप है ना, एवं मक्खन लाल ने चक्का भले बंदे दा मत मार के रख देते हैं, चंगे भले बंदे दी मत मार के रख देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो रिलीजियस लीडरशिप है ना, वो ये समझती है कि ये बंदा मेरे हाथों में मेरी कठपुतली है, उन्होंने भावे दुआवां नाल चक्कर दवे ते भावे किसी और तरीके नाल चक्कर दवे, पैसों के साथ भी चक्कर दिया जाता है। और ये हो क्या रहा है? यहोयाकीम के साथ क्या हुआ? यहोयाकीम के साथ यही तो हुआ। काहिन अपनी नबूवतें कर रहे हैं और आके जलील करवा रहे हैं बेचारे को, कैसी मौत मरवा रहे हैं उसको।
नबूकदनेस्सर बुत परस्त बादशाह से जलील करवा रहे हैं, और फिर बाद में हम रोते हैं, ओ जी साने तो गैर कौमान काम कर। गैर कौमें क्यों ना जलील करें हमें? गैर कौमें उतनी देर तक क्रिश्चियंस को जलील करेंगी जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और जब तक हमारी रिलीजियस लीडरशिप जो है एक दूसरे को, मैं जो फिक्रा बोलने लगा हूं, यह नहायत खतरनाक है, एक दूसरे को हम कवर कर रहे होते हैं। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूं। तो इसका नतीजा जो है वो कौम भुगत रही है। इसका नतीजा जो है हिस्टोरिकली आपने देख लिया, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा गैर कौमों से मरवाता है अपनी कौम को। तो मैं और आप कौन है? फिर हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में चूड़ा कहा जाता है, हमें पाकिस्तान में भंगी कहा जाता है, हमारे पाकिस्तान में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमारे साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है, हमारे साथ पाकिस्तान में ये सलूक हो रहा है। तो ये सलूक होना वाजिब है। गैर कौमें मसीहियों के साथ उतनी देर तक ये करती रहेगी जब तक रिलीजियस लीडरशिप करप्शन के अंदर से बाहर नहीं आएगी और झूठी नबूवतें कर करके पॉलिटिकल लीडरशिप को गाइड गलत कर रही हैं। और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ये भी समझती है कि इक्को ही दारे मेरे को, हर पॉलिटिकल लीडर जो है उसने, दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा कि एक अड्डा बनाया हुआ है चर्च को या किसी बड़े लीडर को जिसके पास चार आने हैं, फेम है, पैसा है, और उसी बंदे ने उसको खराब इतना उसका दिमाग किया होता है कि वो किसी बेचारे छोटे की सुनता ही नहीं है। तो कौम क्यों ना जलील हो? इसलिए कौम जलील हो रही है कि दोनों लीडरशिप्स जो हैं, रिलीजियस लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट हो जाए तो कौम जिल्लत की जिंदगी गुजारती है। और इसलिए कौम जिल्लत की जिंदगी गुजारती है कि कौम के अंदर लोग करप्ट होते हैं, जिसके नतीजे में ये दोनों लीडरशिप्स आ जाती हैं। ये आज खुदा हमें सिखा रहा है, जिसके नतीजे के अंदर ये दोनों लीडरशिप आती हैं। ये सिर्फ कौम के सबब से है, सिर्फ कौम के सबब से। जुबान कौम की बंद, पॉलिटिकल लीडर्स के आगे जाए, गालियां पीछे निकालेंगे, सामने जाए हो शराब। हमारा हाल क्रिश्चियंस का पाकिस्तान के अंदर यह है कि हमारे पास कोई छोटा सा बंदा ही आ जाए ना, कोई पुलिस वाला ही आ जाए तो सारियां भी लत्तां पादरियां दी कम रही होंदियां ने। कोई बड़ा बंदा थोड़ा सा उससे तू बड़ा आ जाए तो जगह खलो जी जाए, तो बाकियों का की हाल करना है? ऐसा आपके पास अथॉरिटी का कलाम है, खुदा ने आपको दिया, कौम बनिए। इस्राइल जलील हो गया और अभी तक हो रहा है, आइंदा दिनों में हम सीखेंगे। सिर्फ इसलिए जलील हुआ गलत दुआओं के नतीजे से। मैं फिर कह रहा हूं, हमें वो मौजे लगते हैं। हिजकिया बादशाह की दुआ हर पादरी ने रटी हुई है, माफी मेरे माफ करे आज मैं अगर फिक्र ये बोल रहा हूं तो, हर पादरी ने दुआ रटी हुई है। हिजकिया बीमार पड़ गया, उसने दुआ की और उसकी उम्र 15 साल भर गई। खुदा मौजज़ा करेगा, खुदा मौजज़ा करता है, वो रहीम है। मैं आपको बताऊं, खुदा रहीम है, वो मौजज़े करता है। उसके मौजज़ों पर शक ना करें। मैं फिर कह रहा हूं, उसके मौजज़ों पर शक ना करें, उसके नाम पर शक ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर यह बंदा खड़ा है ना, जायद बकर कोई भी है, यह बंदा खड़ा है, ये यीशु का नाम लेगा तो यीशु अपने नाम की गैरत की खातर काम करेगा। ते कल तुसी इस बंदे नूं इधर कर दो ते इत्थे होर को बंदा लिया के खड़ा कर दो, उहदे वसीले भी खुदा काम करेगा। बंदियां दे वसीले खुदा काम करता है, लेकिन हकीकत में अपने नाम को खुदा इस्तेमाल करता है। हमने मौजज़ों, गलत दुआओं को फोकस किया हुआ है। एक गलत दुआ ने कौम बर्बाद करके रख दी और आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं हम उस दुआ का, उस मौजज़े का। की लोड़ सी तेनू 15 साल उम्र वधान दी? की लोड़ है तेनू एवं पुठियां सदियां बोंगियां मारन दी? हम अपने मौजते हैं, हम पादरी को छोटा बनाते हैं, हम लीडर को बड़ा बनाते हैं, हम लीडर को छोटा बनाते हैं, हालांकि वो दोनों खुदा के खादम है।
मिन हसीयतुल कौम, एज अ नेशन हम ठीक नहीं है, हमें ठीक होने की जरूरत है। दूसरी बात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारी गलत हरकत। और हम देखिए ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੂਸਡ ਹੈ ਤੇ ਆ 20 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਬੱਸਾਂ ਟੁਰ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਐਡੇ ਮਾਸੂਮ ਆ ਸੀ, ਐਡੇ ਸਾਦਾ। सादगी अंदर से होनी चाहिए लेकिन बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। हमारी कौम सादा है, बेवकूफ नहीं है। तो अगर बेवकूफी है तो बाहर निकालें। अगर क्रिश्चियन डेवलप होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और खुदा के साथ काम करना चाहते हैं, तारीख के उड़ाक हमें यह समझा रहे हैं कि बतौर नेशन हम ठीक हो जाए। अगर बतौर नेशन हम ठीक नहीं होंगे, हर बंदे को सर पे बैठा लेंगे, हर बंदे की सुन लेंगे, हर बंदे के पीछे लग जाएंगे। पंजाबी चाहते हैं जिन्हें लाया गली उधर लग चली। आज आप देख रहे एक पार्टी आएगी या एक लीडरशिप आएगी, मिसाल के तौर पर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, सारे उधर पीछे लग जाएंगे, आखिर के तू ही साडा माई बाप है, तू ही सब कुछ है। जिधर ओदी सीट थले दिए नवा लीडर आउंदा नवी पार्टी दा, वो ही सारा ग्रुप फिर उधर पीछे दूजे पीछे लग जाता है। और ऐसे यरगमाल बनाया हुआ है पूरी नेशन को। यही हाल रिलीजियस लीडरशिप का है। हमने यरगमाल बना लिया है कौम को, मेंटली, साइकोलॉजिकली, और कौम यरगमाल बनने पर तुली हुई है। जो हम कहते हैं सुनती है। क्यों? एहसास महरूमी और एहसास कमतरी उनके अंदर है, और एहसास गुनाह जो है उसे महसूस नहीं हम करते। तो आज खुदा हमारे साथ कलाम करता है कि तुम्हारे गलत दुआओं और गलत रवैयों से कौम बर्बाद हो जाती है, और गलत नबूवतों से कौम बर्बाद हुई है। इसराइली गलत दुआओं की वजह से बर्बाद हुए, इसराइली गलत नबूवतों की वजह से बर्बाद हुए, इसराइली बाइबल के खिलाफ, बाइबल को फाड़ने की वजह से, बाइबल को जलाने की वजह से बर्बाद हुए, जलील हुए। कल हम यहीं से इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आज हमने दूसरा हमला सीखा कि 598 में 598 कबल अज मसीह में यहू यकीम मार दिया गया। उसकी जगह 3 महीने के लिए उसका बेटा बादशाह बना, और उसके बेटे ने क्या किया कल से हम जानेंगे, सीखेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए। दानियल की किताब का तफसीरी मुतालिया, तशरीही मुतालिया। सवाल है तो जरूर कीजिएगा, कमेंट है जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूं और आपके सवाल भी पढ़ता हूं। सवालों के मजमुआ इकट्ठा हो रहा है, जिसे मैं इकट्ठे आपको जवाब दूंगा। मैं और मेरी मिसेज आएंगे, हम दोनों मिलकर आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे। कल तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस ट्रांसमिशन को देखा है। मेरा ईमान है कि अगर आप इस ट्रांसमिशन को शेयर करते चले जाएंगे तो इसी तरह बहुत से लोग मुस्तफीद होते जाएंगे। ये चंद घंटों की मैं बात कर रहा हूँ कि 50,000 के मेरे पेज पर। कई मरतबा आप अपने पेज पर देख रहे होते हैं तो उसकी तादाद कम होती है, ऐसा नहीं है, वो आपके पेज पर नजर आ रहा होता है। लेकिन जो मेरे पेज पर ओरिजिनल रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 50,000 से प्लस लोग जो है कल की पहली ट्रांसमिशन को देख चुके हैं। तो अगर मैं यूं कहूं कि आजकल तो 50,000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो इसमें भी कोई मैं ये कहूंगा कि वो हर्ज नहीं है। तो खुदा आपको बरकत दे, अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते जाइएगा। मैं आपको 3 नंबर देने लगा हूं, इन नंबर्स पर राबिता कर सकते हैं। और अगर मेरा फोन बिजी होता है, उठाया नहीं जाता, तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, माइंड ना कीजिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, अपना वॉइस मैसेज जो है वो जरूर भेज दीजिएगा। हम वॉइस मैसेज बाद में सुन लेंगे। तो नंबर है, नोट कीजिएगा, जो इंटरनेशनल नंबर है कनाडा का, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप इस पर राब्ता कर सकते हैं +1 365 778 8082 पर। और मेरा दूसरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो +92 300 4179 633। दोबारा बोलता जाऊं, व्हाट्सएप नंबर +92 300 4179 633 और +92 321 4179 633। और इसके साथ साथ आखिर में मैं आपको ये भी बताऊं, हमारे YouTube पे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन पर
दबाइएगा ताकि जैसे हम लाइव होते हैं तब वैसे ही ट्रांसमिशन आप तक आती चली जाए। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते जाएं खुदा के कलाम को। एतराज़ ज़रूर कीजिएगा, लिख के कीजिएगा, पब्लिकली कीजिएगा। हम आपके एतराज़ को खुले दिल से कबूल करेंगे। बहुत से मुझे ईमेल्स भी आए, क्रिटिकल ईमेल्स भी आए हैं और मैंने उन क्रिटिकल ईमेल्स को भी जवाब दिया। मैं हमेशा जवाब देता हूं। आप भी लिखिएगा, आपके सवाल का, आपके कमेंट का मैं मुंतज़र रहूंगा और आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आपको खुदा के कलाम को मिलकर, सुनिए गौर से, खुदा के कलाम को मिलकर रूहुल कुद्स के वसीला से हम सीखते जाएंगे। रूहुल कुद्स हमारा उस्ताद है, हम उसके वसीला से सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। कल इसी जगह से हम शुरू करेंगे और 9 और 598 के अंदर जो कुछ हुआ उस पर से पर्दा उठाएंगे और फिर तीसरे हमले पर बात करेंगे कि तीसरा हमला हुआ और फिर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के साथ क्या किया और फिर कैसे कुछ हुआ। और फिर आइंदा दिनों में नबूवतों पर सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले हिस्ट्री जानना जरूरी है। नबूवत उतनी देर तक समझ नहीं आएगी जितनी देर तक आपको हिस्ट्री, हम नबूवत को समझना चाहते हैं। हम देखिए, हमारी इतनी सादगी है, हम नबूवत को देखना चाहते हैं। नबूवत हमेशा तारीख के साथ लिंक करती है। नबूवत को समझने के लिए तारीख को समझना पहले जरूरी है, फिर नबूवत समझ में आएगी। सो तारीख को समझना जरूरी है। हम नबूवत को समझने की कोशिश करते हैं, तारीख को पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने फाउंडेशन के ऊपर, इसलिए खुदा ने पहले तारीख की बात की है, फिर नबूवत की बात की है। सो पहले तारीख, फिर नबूवत। तो हम अगले दिनों में नबूवतों पर भी खुदा के कलाम को सीखेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा हर रोज। गौर से सुन लीजिएगा, हर रोज सुबह कैनेडियन टाइम 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे और पाकिस्तानी टाइम रात 9 बजे के मुताबिक मैं आपके साथ कलाम करूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए और आप बाइश बरकत ठहरे। हमारे साथ रहिए, तफसीरी पैगाम आप तक आते रहेंगे। अगले दिनों में हम दुआया सेशन करने वाले हैं। मैं और मेरी मिसेस दोनों मिलकर हम आपके लिए दुआ करेंगे और आपके लिए ब्लेसिंग्स चाहेंगे। आपकी दुआया रिक्वेस्ट हमारे तक आ रही हैं, हम उन दुआया रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। ब्लेस यू। खुदा अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। हालेलुया। हाँ बेगम।